Hello everyone, very good evening. I'm going to start up with the international relations with Pakistan. As we have all decided, today we are going to do it the international relations with Pakistan. We have already completed the USA, the European Union, the China, Nepal, Indonesia, Vietnam, Sri Lanka. Now we are coming up with the very closest and very dear and near neighbors of us, that is Pakistan. पाकिस्तान का अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट इज पार्टीशन the first war of Indo-Pak war, the first Indo-Pak war. Third is genesis of Kashmir. Right? ये पहला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में पाकिस्तान का. एक चीज और, यहाँ पे मैं कुछ नोट्स लिखूंगा, उसको आप जॉट डाउन कर लीजिए या फिर आपके पास रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड वीडियो है, वो देख सकते हैं. वेयर एज यू कैन कम डाउन ऑन अ वन टारगेट प्लेटफॉर्म. वन टारगेट यूपीएससी का कोई भी प्लेटफॉर्म पे आएंगे, यू विल गेट ऑल रिलेटेड वीडियोस फॉर यू. Birth of Pakistan. Birth of Pakistan was excruciating. कष्टदायक. ठीक है, ये याद रख लीजिएगा. Birth of Pakistan was excruciating, followed by a bloodbath of an unprecedented. देखो, 1947 में दो स्टेट्स बने, नॉट वन. सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. दिस इज इंडिया. ठीक है, थियोक्रेटिक मुस्लिम स्टेट, दैट इज पाकिस्तान. ये दो वर्ड याद रखिएगा. एंड हु वाज द फादर ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना. He was the father of nation Pakistan. Father of Pakistan. या आप नेशन कह सकते हो. So you don't get confused. ये ध्यान रखिएगा. अब यहां से प्रॉब्लम यहां से चालू होती है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैड हैपेंड. After independence, what had happened? They think that Kashmir is their own state because the majority of people over there were Muslims, whereas the ruler was Raja Hari Singh. Maharaja Hari Singh was a Hindu ruler. So from where the genesis of Kashmir started up. Partition के बाद genesis of Kashmir, ये क्या हुआ, उसका root cause क्या है? What is the root cause? When the questions comes कि how it happens and what are the root causes of creating in genesis of Kashmir. Genesis of Kashmir को निकालने के लिए, कश्मीर dispute को निकालने के लिए, we'll go through with the relevant notes. Muhammad Ali Jinnah, he assured. What he assured? To whom he assured? And what he assured? He assured to the Britishers
the old colonial masters to the Britishers and the neighbors. ये क्वेश्चंस हैं. What he assured, मैंने वर्ड लिखा है assured, आएगा, आया हुआ है, ठीक है. To the Britishers and Muhammad Ali Jinnah assured what? That Pakistan will be ruled by the law. First, what he assured, what 3 points he assured? It will be ruled by the law. Constitution will be followed. In keeping safeguard to the minorities. Safeguard of interest towards the minorities. ये भी लिख सकते हैं. ये पूरा क्यों नहीं हुआ? What happened? Why it was not being fulfilled? Not fulfilled. Point. Not fulfilled. As he died in September 1948 due to cancer. हुआ क्या? He was, जब तक गवर्नर जनरल का वो खिताब लेते, एज्यूम्ड अपना ऑफिस, गवर्नर जनरल का ऑफिस संभालते, तब तक उनको कैंसर डायग्नोस हो गया था. कैंसर diagnosed and he died. Clear? Now these 3-4 points, when जिन्ना का क्यों नहीं हुआ, गवर्नर जनरल का ऑफिस लेने से पहले he died because cancer diagnosed हो गया and he was not well, he was not well, sick, properly sick, right? इसके साथ ही पाक आर्मी and some military man, you can say the most dominating personalities of Pakistan, right? Most dominating personalities of Pakistan and the Pakistani army. What they decided? Marched towards Kashmir. Majority of population were Muslims and Maharaja Hari Singh was a Hindu ruler. And ये हुआ क्यों था? ये मार्चिंग क्यों हुई थी? Because this man, Maharaja Hari Singh, he took long time to decide whether Kashmir will go in India or Pakistan, right? Why it happens? It happens because he took long time to decide whether they will join India or Pakistan. The Kashmir will join India, Pakistan. Whereas the majority of people were the Muslims and the ruler were Hindu. Hari Singh, Maharaja Hari Singh, spoke to Nehru ji about this episode of पाक, जो कि अपने आप को क्या बता रहे थे पाक के वो लोग जो मिलिशिया मैन और सम पीपल मिलिट्री, व्हाट दे वर सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, उनको क्या बता रहे थे?
were decided as if they are freedom fighters. Clear? Then episode starts not from here. This starts from here. Nehruji said, I can send army when you will sign or join the India. आप उस ट्रीटी को साइन करोगे, उस असाइनमेंट को साइन करोगे, उस असाइनमेंट पे साइन करोगे, उस असेसमेंट पे साइन करोगे और ज्वाइन करोगे इंडिया को, तब आई कैन हेल्प यू विद दिस. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड मिलिशिया मैन्स दे वांटेड टू अप्रोच to Srinagar as a freedom fighters. They want as a freedom fighters, so they wanted a independent Kashmir. Clear? और यहाँ पे क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट, मैं को वर्ड लिख रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैसिन was signed in great hurry. Right? Nehruji spoke to United Nations about the ceasefire. The actual line of control came into existence after independence in 1947-48. Before this, it was line of control, LOC, before. यहाँ से स्टोरी जब स्टार्ट हुई तो इंडियन फोर्सेस did not chase the militants from the occupied Kashmir. This was the genesis of Kashmir. यहाँ से कश्मीर डिस्प्यूट पैदा हुआ. क्यों? जेनेसिस ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट इन पॉइंट्स की वजह से आया. अब इसमें एक पॉइंट और है. अब क्या हुआ कि उन लोगों ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन फोर्सेस ने उन मिलिटेंट्स को बाहर नहीं फेंका. बाहर नहीं फेंकने का मतलब उनको चेज नहीं किया उस जगह से जहां पे उन्होंने उस कश्मीर को ऑक्यूपाइड कर लिया था. पहली चीज. दूसरी चीज, ये कुछ टाइम में डी फैक्टो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में आ गए, ट्रीटेड एज डी फैक्टो इंटरनेशनल बॉर्डर्स. उधर बैठे हुए कुछ मुस्लिम लीडर्स ने, पाकिस्तानी लीडर्स ने, मुस्लिम लीडर्स कह रहा हूं, पाकिस्तानी लीडर्स ने, वहां बैठे कुछ पाकिस्तानी लीडर्स ने ये समझ लिया कि जम्मू एंड कश्मीर इज देयर पार्ट. पाकिस्तान लीडर्स, पाक लीडर्स assuming that the Kashmir, JNK लिख रहा हूं, JNK is the part of Pak. Why? There is the part of Pak. अब यहां से बात जो चालू होती है वो what they started. यहां के बाद क्या हुआ? Jammu and Kashmir, Pak leaders assumed that the Jammu and Kashmir is a part of Pak. Why? Because the agreement, the general agreement as per the terms of British, इन्होंने एक एग्रीमेंट, जो जनरल एग्रीमेंट हुआ था पार्टीशन के समय, जनरल एग्रीमेंट ऑफ पार्टीशन, यहां लिख लो पार्टीशन, सॉरी.
ब्रिटिश ने क्या कहा था कि majority of Muslim states will join Pakistan in spite of Hindu ruler. ठीक है. अब इन्होंने सोचा कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज means majority of people are Muslims. They thought that this part is J&K is a part of this. That is the genesis of Kashmir dispute. Kashmir dispute के ये genesis इस वजह से यहाँ तक आते हैं. Another complication was the famous ruler Abdullah शेख, राइट. इन्होंने और इनके टीम मेंबर्स ने, he and his team has given lot of to the Indian Constitution, and he was a good friend of Nehru ji. Nehru ji committed him about the separate status to Kashmir in independent India. And Sheikh Abdullah was a very genuine man. इनके काफी सारे, इन्होंने काफी वर्ड्स थे, ट्रिनिटी थी, इन्होंने काफी फेमस हुए कश्मीर के अंदर. इनको बहुत सारे लोग बात मानते थे. तो वहां पे जब इन्होंने ही वांट अ डिफरेंट स्टेटस, वांटेड अ सेपरेट स्टेटस फॉर कश्मीर, राइट, वो हुआ नहीं. अब जिस समय वॉर हो रही थी तो 1947-48 के अंदर जब वॉर का डिस्क्रिपेंसी हुई, वॉर डिस्प्यूट हुआ, वॉर का ये मिलिटेंट्स को बाहर निकाला गया और ये रह गए कुछ लोग. 1948 के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो जो बच गया, तब उन्होंने कहा कि अभी डिसबैलेंस है, अभी काफी सारी सिचुएशन डिसबैलेंस है. व्हेन द सिचुएशन विल बिकम स्ट्रीमलाइन, देन वी विल गो अहेड विद द सेपरेट स्टेटस और सेपरेट एंटिटी ऑफ कश्मीर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. वो हुआ नहीं. इस वजह से क्या हुआ, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK, इसको इंडिया में कहा जाता है. ये इंडिया में है. पाकिस्तान में इसको कहते हैं आजाद कश्मीर. ये बात है 1947-48 की. This was the entire genesis of your Kashmir dispute. अब इसके ऊपर 250 वर्ड्स आए, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो. 2 शब्द आए. Who were the leaders? Abdullah Sheikh, Maharaja Hari Singh. What was the genesis? Because there was an accession of agreement जो बहुत फास्ट हुआ, उस वजह से ये जेनेसिस की प्रॉब्लम, ये कश्मीर डिस्प्यूट की प्रॉब्लम आई. अब इंडो पाक रिलेशंस, कोल्ड वॉर इज विथ नॉट विथ अस. कोल्ड वॉर इज बिटवीन US and USSR and our relations with Pakistan. How we grow our relations when there was a cold war between US and USSR. So now the topic come
कोल्ड वॉर एंड इंडो पाक रिलेशंस। ये कब हाइड हुआ? 1947 से लेके 1991 तक ये इवेंट्स हुए। कब इवेंट्स हुए? There was a cold war between US and USSR, right? यहाँ पे one point, second point, what did the US ने बायलैटरल समझते हैं? यहाँ पे चाइना भी है, यूएसएसआर भी है, पाकिस्तान भी है। यहाँ पे जो बायलैटरल डिस्प्यूट था, इसका फायदा उठाया यूएस ने, एंड व्हाट दे डिड, इंडिया को ऑफर किया India wasn't trusted by the US, you can say. ये यूएस से ट्रस्टेड नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने इनको एंटरटेन किया। पाकिस्तान एंटरटेन देम, यूएस को। व्हाई डिड द पाकिस्तान एंटरटेन? बिकॉज यूएस डिप्लोमेसी ने प्रॉमिस फॉर द कश्मीर डिस्प्यूट, फॉर द resolution of कश्मीर डिस्प्यूट। क्लियर? यहां पे इंडिया was on great pressure। क्यों? क्योंकि यूएस ने उनको सपोर्ट किया, तो इन्होंने यूएन नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस में यूएसएसआर के वीटो वोट से, फ्रॉम वेटो वोट से हमको थोड़ा सा सीज्ड अ बिट, हम लोगों को जान आई। नहीं तो वी वर ऑन ग्रेट प्रेशर दैट वी हैव टू गिव कश्मीर टू द पाकिस्तान, बिकॉज यूएस वाज प्रेशराइजिंग इट। बट यूएन काउंसिल के अंदर, यूएन काउंसिल में यूएसएसआर ने हम लोगों को वोट किया। इसी के साथ साथ व्हाट हैपेंड इन सितंबर 1948, जिन्ना डाइड। In September 1948, Muhammad Ali Jinnah died. Then there was a worsened situation. Why? अभी हम लोग उस worsened situation को समझेंगे. What happened in Pakistan? Why their relations with India is so delayed, and they were never ever talking about the Kashmir. They were never very meticulous, they were always be amicably very challenging. So what we did is यहां से स्टार्ट होती है स्टोरी। यहां पे क्या हुआ कि पॉलिटिक्स की थोड़ी सिचुएशन खराब हो गई, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ये क्या हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, टू सेपरेट पार्ट्स में। पहला आया वेस्टर्न फ्रंटियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इंपॉर्टेंट था कि लाइन ऑफ कंट्रोल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947-48 when there was a dispute and what it happened over there, this part। वहां पे 1947 केम इनटू एग्जिस्टेंस किस समय आई, जब वॉर हुई। वॉर से पहले लाइन ऑफ कंट्रोल का कोई वो नहीं था। 1947-48 में जब काफी सारे लोगों ने मिलकर तो लाइन ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। टू सेपरेट पार्ट्स, पहला था वेस्टर्न फ्रंटियर। वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर आता है पंजाब एंड सिंध की प्रोविंसेस, पंजाब एंड सिंध।
ये कहाँ की प्रोविंसेस थी? ये इंडिया की मेनलैंड, इंडिया मेनलैंड, ठीक है। दूसरा इसी के साथ चालू हुआ, यहां पे पख्तून, पख्तून जो अफगान बॉर्डर के पास है, अफगानिस्तान के, दूसरा फ्रंटियर हुआ पख्तून वाला। पख्तून इज अफगान बॉर्डर के, अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है, नियर टू अफगानिस्तान बॉर्डर। यहां से स्टोरी डिफरेंट चालू होती है। पंजाब एंड सिंध दो पता चल गए, एक वेस्टर्न फ्रंटियर हो गया। वेस्टर्न फ्रंटियर वो फ्रंटियर हो गया जहां से इंडियन मेनलैंड डिवाइड होती है, ठीक है। जहां से इंडियन मेनलैंड डिवाइड हुई, इंडियन मेनलैंड का मतलब जब हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान था, वहां से जब डिवाइड हुआ तो उसको पंजाब एंड सिंध का प्रोविंस कहा जाता था। जो पाकिस्तान वाला एरिया उनको पाकिस्तान को मिला। तो एक तो इंडियन मेनलैंड से पंजाब और सिंध डिफरेंट हुई, और एक पख्तून वाला एरिया है नियर टू पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। यहां पे क्या हुआ, इन लोगों ने भी रेज करी वॉइस, दे वांट डिफरेंट कंट्री, रेज वॉइस for the separate nation. Clear? Okay. यहां पे इस एरिया के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो ये वाला एरिया है पंजाब एंड सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर ये एरिया था डोमिनेटेड बाय पंजाबीज एंड पठान्स, राइट। ये और वो लोग पोजीशंस पे भी थे, दे वर ऑन टू पोजीशन, गुड पोजीशंस इन आर्मी एंड पॉलिटिक्स। यहां पे जब इंडिया से काफी सारे लोग, इंडिया से इन्फ्लक्स, देयर इंडियन रिफ्यूजीज went to Pakistan. Indian refugees went to Pakistan. They were called as मुहाजिर्स। ये वो लोग थे जो इंडिया से गए थे। अब ये इतने प्रोफेशनल से कि इनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे पंजाबी से, बिकॉज दे वर नॉट दैट लिटरेट इन दिस एरिया, दैट पार्ट ऑफ इंडिया व्हेन दे वर सेपरेटेड। This province, not western frontier of Punjab and Sindh, were not that much literate, not that much administratively effective over there. तो वो जो लोग हैं जो इंडिया से गए वो पढ़े लिखे थे, तो अब इनका जो कॉम्पिटेंट लोग थे, competent people were fighting in their own country for their livelihood, whereas the country was disturbed financially and administratively. राइट? बहुत सारी चीजें अभी देखने को मिलेंगी। अब इसी के साथ जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो बंगाली मुस्लिम्स की होती है ना? क्या हुआ, मैं इसीलिए अभी आपको ये रिलेशंस भी समझा रहा हूं कि व्हाट वाज द डिस्टर्बेंस। कुछ बंगाली मुस्लिम्स जो है वो भी गए यहां से। बंगाली मुस्लिम्स जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में सेटल हुए, ईस्ट पाक में, जहां पे अब पहले से ही जो ऑलरेडी जो इंडिया से रिफ्यूजीज गए थे उन्हें ही मुहाजिर्स कह रहे थे, तो इनका तो बहुत डिफिकल्ट हो गया रहना। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज।
different language. Their communication, their language was a barrier between them, between the relations in eastern and the western Pakistan. अब वो जो पठान्स और वहाँ के जो प्रॉपर मुस्लिम्स थे, जो प्रॉपर लोग थे, पुराने सिटीजन्स थे, उन्होंने इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, नॉट एक्सेप्टेड, अच्छी तरीके से एक्सेप्टेड नहीं किया। आ गए वो बात अलग है, वो पहले से ही वो जहाइट्स को परेशान कर रहे थे, तो ये तो फिर डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे, डिफरेंट। अब क्या हुआ, हम जो वेस्टर्न फ्रंटियर था वहां उर्दू डोमिनेटिंग लोग थे। उर्दू लैंग्वेज was dominating, right? Dominating थी, लैंग्वेज डोमिनेटिंग थी, ड्रेस इन बंगालीज की वेस्टर्न फ्रंटियर में उर्दू लैंग्वेज डोमिनेटिंग थी, उनका ड्रेसिंग डिफरेंट था। जबकि इन बंगाली मुस्लिम्स का देवर लैंग्वेज बैरियर थी, पहला पॉइंट लैंग्वेज बैरियर, सेकंड ड्रेसिंग, dressed up differently, were very resilient and liberal in practice of Islam. इसने लैंग्वेज ने नेशंस पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान नेशन पॉलिटिक्स का लैंग्वेज का बड़ा रोल रहा, बताते हैं। ये इंडो पाक रिलेशंस के पीछे के टर्मिनोलॉजी है कि किस वजह से इंडो पाक रिलेशंस खराब हुए। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्टर्न नॉर्थ फ्रंटियर पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, यहां से कुछ लोग गए, उन्हें मुहाजिर कहा गया, कुछ बंगाली मुस्लिम्स गए, उनको तो एक्सेप्ट करने से ही बहुत डिफिकल्टी आई ईस्ट पाकिस्तान में, बिकॉज देवर लैंग्वेज बैरियर थी, ड्रेस अप, देवर वेरी साइलेंट एंड लिबरल इन प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम एंड लैंग्वेज वाज अ मेन रोल। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हुए, कैसे हुए, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हुए, यहां से समझना। नेशंस पॉलिटिक्स में लैंग्वेज प्ले अ मेजर रोल, इन पाकिस्तान नेशनल पॉलिटिक्स में प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। हाउ? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लोग वो चेस्ट उर्दू बोलते थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न के। और वेस्टर्न फ्रंटियर जो था इनका, वेस्टर्न फ्रंटियर में उनकी लैंग्वेज अलग, सिंध, उनका अपीयरेंस, उनका आउटलुक अलग, ठीक है। यहां पे बाय फेयरली और फ्रीली अगर इलेक्शन होता तो बंगाली मुस्लिम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेजर रोल प्ले करते, मेजर रोल प्ले इन पॉलिसी मेकिंग। कौन? बंगाली मुस्लिम्स। पर हुआ नहीं ऐसा, ठीक है।
ये मैं चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके मद्देनजर यहां पे एक डिफरेंस आया। क्यों डिफरेंसेस हुए? अगर वो लोग ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर अगर बंगालीज फेयरली और फ्रीली उनका वोटिंग होता, तो वो यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में, पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेजर रोल प्ले करते और इस तरीके का डिस्प्यूट नहीं होता। बट यहाँ ऐसा हुआ नहीं। 15 अगस्त जिस दिन हम आजाद थे 1947 में, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर लियाकत अली खान was the Prime Minister of India, वो Prime Minister of Pakistan. Liaquat Ali Khan was the first PM of Pakistan. The first Prime Minister, Mr. Liaquat Ali Khan, and the Governor General Iskandar Khan. ठीक है ना? Governor General मिस्टर इस्कंदर खान, ठीक है। यहां पे तब तक यूएस डिप्लोमैट्स को, सीआईए को ये पता चल चुका था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू सस्टेन इन दिस कंडीशंस। दे हेल्प देम. And why they helped them? Because there was a region which is very close by to USSR. It's near to Pakistan. So what they think, they promised Pakistan to give the weapons and financial support. US diplomats and CIA promised Pakistan for the financial and military support. weapons लिख रहा हूं, military support. They promised Pakistan for the financial and military support, and they developed the Pak army while providing weapons and financial support. They were happy, and they were just pleasing to the US officers because they were getting the financial and supports and the weapons from the US army. So they were pleasing all politicians of Pakistan. They were pleasing, very much pleasing that time to the US people, US administration. So the Pak army, यहाँ से 1956 में 1956 Mr. Liaquat Ali Khan died in mysterious conditions. Mr. Iskandar Khan, the Governor General, GG लिख रहा हूं, Governor General Iskandar Khan, was removed in 1958 by the important Mal, Field Marshal Ayub Khan. यहां से हमारे इंडो पाक रिलेशंस जो हैं इस आदमी की वजह से खराब होते हैं, बिकॉज द वॉर बिटवीन दिस रिमूव बाय whom? He was an officer to Field Marshal Ayub Khan, right? In which year? 1958. यार यहां से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस यहां से खराब ज्यादा होने चालू हुए. वो कैसे हुए? पहली चीज तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ हो गया.
और आर्मी के बीच में कोई बोलता नहीं था। आर्मी लॉ समझ लो, कोई बीच में बोलता नहीं था। फील्ड मार्शल अयूब खान ने कंट्रोल किया, पावर अपने हाथ में ली। यहां से चालू हुआ मार्शल लॉ, लॉन्ग स्पेल ऑफ मार्शल लॉ, लॉन्ग स्पेल, लंबे समय तक। टू for the constitutions and functionally periodically legislatures, मतलब इनके क्या है कि कंसिस्टेंटली इनके जो इलेक्शंस हैं उसमें ध्यान रखते हुए, तो that martial law was until unless it was not a matter of army where army is involved, वहां पे ये लॉ काम नहीं कर रहा था। जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लॉ की जगह पे आर्मी इन्वॉल्व है, वहां पे ये काम नहीं कर रहा था। इसी के बीच में इनकी मिनिस्ट्री के अंदर एक फॉरेन मिनिस्टर थे, मिस्टर भुट्टो। ये कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे। इन्होंने जिया ZA भुट्टो, जियाउल भुट्टो, ठीक है। ZA भुट्टो जो है वो कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे। He studied in Cambridge और इंटेलिजेंट फॉरेन मिनिस्टर था। इसको कोई, इसने दो तीन जैसे इन्होंने एग्रेसिवली कैंपेन्स रन किए अगेंस्ट इंडिया। ज़ैड भुट्टो ये फॉरेन मिनिस्टर थे किस समय पे, और ये सिंध के उस क्लैन से बिलोंग करते थे। भुट्टो फैमिली सिंध क्लैन से बिलोंग करते थे, बिलोंग टू सिंध क्लैन। सिंध क्लैन इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, क्लियर, जहां पे ड्रेसअप डिफरेंट है, जहां पे भाषा चेस्ट उर्दू बोली जाती है, उस जगह के ये आदमी थे। ये कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे। इन्होंने स्टार्ट की एग्रेसिवली कैंपेन्स अगेंस्ट इंडिया। आ गया इंडिया पाक रिलेशंस का मैटर। फर्स्ट साइनो इंडियन वॉर, पहली जकार्ता पिंडी पैकिंग एक्सेस। देखो भाई, यहां से हमारे रिलेशंस, इंडो पाक रिलेशंस जिसकी अभी बात कर रहे थे, कोल्ड वॉर जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में थी, यूएस ने क्यों सपोर्ट किया, यूएसएसआर के चक्कर में सपोर्ट किया, जिसका हमारे रिलेशंस पे असर पड़ा, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस पे फर्क पड़ा, किस किस वजह से, और कुछ रीजंस और भी थे। जैसे मिस्टर लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मारे गए, मतलब नो वन नोज हाउ ही डाइड, मिस्टीरियस। देन second person came in line, that is Ayub Khan, Field Marshal Ayub Khan. What he did, he fought against us. He fought twice against us. 65 में he fought. Then Z.A. Bhutto, the foreign minister of Mr. Ayub Khan, उनके कुछ डिप्लोमेट थे। Very aggressively he run a campaigns against India, जिसमें साइनो इंडियन वॉर आई, जकार्ता पिंडी पैकिंग एक्सेस आया। इस वजह से हमारे रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो किस वजह से डिस्टर्ब हुए, these were the reasons. US support them
with the weapons and the financial support. They developed the Pakistan army, but they were not being able to develop it very well. We are coming with the second war with Pakistan in 1965. देखो मैं इसके छोटा छोटा कुछ लिखूंगा. Second war of Pakistan in 1965. हुआ क्या? पहला पॉइंट था 1964 में नेहरू जी डाइड. मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री was the PM. इनके सक्सेसर्स ने सोचा, जो सक्सेसर्स थे, इन्होंने सोचा धोती क्लैन वाला आदमी क्या जानता होगा इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में. ठीक है. लबासना, Who knows about लबासना? लाल बहादुर शास्त्री. ठीक है. तो लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर ही लबासना है आप लोगों का. तो ध्यान रखिएगा, he was a major and an important man for you. Always remember him. You are going to Labasna, so you have to read him very properly. यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई? यहाँ पे सबरे जेट्स दिए गए, and Sherman tanks by US Army. To whom? To PAC. उन्होंने सोचा कि यार सबरे जेट्स और शर्मन टैंक्स का इंडियन आर्मी कैसे जवाब देगी, पर बहुत उल्टा हुआ. 65 की वॉर, 3 people in my family they fought this war. एडवर्ड हीथ, ये हुआ क्यों था? एडवर्ड हीथ, the PM of British, he promised Pak to receive support from them, England, once they will fought a war with India. It was a bad impression of Pakistan army because they were in impression कि एक तो मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी जानते नहीं है इंटरनेशनल क्लैट को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. It was a big defeat. कहाँ पे? रान ऑफ कच्छ के एरिया में. कुछ कश्मीर का भी एरिया है जिसे चिकन नेक कहते हैं, वो भी इन लोगों ने वहां पे पार्ट्स में लड़ाई हुई. रान ऑफ कच्छ है. इसके अलावा जूलियन खेमकरन साहब, खेमकरन इज अ प्लेस. जूलियन, खेमकरन एंड चम सेक्टर्स. चम सेक्टर्स के अंदर जो रान ऑफ कच्छ के पास थे, यहां पे लड़ाई हुई. कुछ उरी और पुंछ सेक्टर्स में जो जम्मू का पार्ट है, यहां पे कुछ उन्होंने ऑक्यूपाई लैंड कर भी ली. कुछ लैंड और एरिया कह दो, जिसको कहते हैं चिकन स्नैक. यस, चिकन स्नैक मतलब पतली ऐसे होती है उसकी नेक. तो यहां से पाकिस्तान ऑलरेडी है, इसको भी ऑक्यूपाई कर लिया. तो ये रास्ता इंडिया का, ये इंडिया है. ठीक है. तो दैट वहां पे कारगिल हुई थी, यहीं पे कारगिल हुई थी, इसी जगह पे. इस चिकन स्नैक की वजह से ही कारगिल हुई थी. अगर चिकन स्नैक नहीं हो तो कारगिल हो नहीं सकती, बिकॉज देयर वाज नो रूट टू पास पाकिस्तान फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. राइट. ये कुछ एरियाज थे जहां पे. लेकिन क्या हुआ, इंडियन आर्मी, लाल बहादुर शास्त्री ने जब इंडियन आर्मी के जनरल्स को कहा कि भाई आप देखो लड़ाई आपकी है, बिकॉज यू आर ट्रेन्ड एंड वी आर पेइंग यू and you are dedicated for the nation. तो लाल बहादुर शास्त्री ने, they have given a full authority to the generals, Indian generals, and they knocked the door at Lahore. लाहौर तक पहुंचने के लिए जनरल्स को छूट दे दी गई. मतलब
उनको कहा गया कि हराओ भाई, ये लोग आ गए अब हमारे घर पे। तो जनरल्स ने लाहौर के दरवाजे को खटखटा दिया कि हम आ गए भाई, भागो। और ये ग्रेवयार्ड बना। ये जगह क्या बनी? पाकिस्तान टैंक्स की ग्रेवयार्ड बनी। यस, ये पाकिस्तान टैंक्स की ग्रेवयार्ड मानी जाती है। ये जगह बहुत सारे मिलेंगे, खेमकरन साहब में मिलेंगे, चम सेक्टर में मिलेंगे, जूलियन सेक्टर में मिलेंगे। तो ये जगह मानी जाती है। अब यूएस और यूएसएसआर जो है, दे यूज एंड यूएसएसआर, यूएस ये इसी से रिलेटेड है। इंडिया पाक की 65 वॉर से ये रिलेटेड है, बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वॉर जोन हो रखा था, और दोनों जने जो हैं अपना शो करने से, चाहे वो वेपन्स हो और पावर को शो करने से, बाज नहीं आ रहे थे। दे वर नेवर एंडिंग, नेवर एंडेड शो। वहीं पे वियतनाम की वॉर हो गई। वियतनाम वॉर बिटवीन यूएस एंड वियतनाम, राइट। ये पॉइंट्स है 65 के वॉर के। वेपन्स को फ्लड की तरीके से, मतलब पानी की तरीके से दे रहे थे यूएस एंड यूएसएसआर, और रोकने का नहीं काम हो रहा था। एक मीटिंग बनाई गई, ताशकंद, द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, राइट। किसके बीच में? अयूब खान एंड उस समय के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर जी के बीच में, बहादुर शास्त्री जी के बीच में, ठीक है। ये एग्रीमेंट हुआ। जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ, we lost the greatest leader of India, right? लाल बहादुर शास्त्री को उसी रात, the same night we lost him, जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान ने उतनी रेलेवेंट तरीके से नहीं माना, डिनाइड ऑन दिस एग्रीमेंट। 1966, when Lal Bahadur Shastri died in 1966, Mrs. Indira Gandhi became PM, but she was very busy because रूपी डिवैल्यूएट हो गया था, रूपी की वैल्यू डिवैल्यूएट हो गई थी। बैंक सेक्टर जो है काफी उस समय विजाइल फॉर्म में थे। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखते हुए शी वाज नॉट लुकिंग आफ्टर लॉट ऑफ थिंग्स, बट एग्रीमेंट इंटरनल प्रॉब्लम से ग्रस्त थी। यहां पे इन्होंने इस चीज को फेस नहीं किया। 1968 में क्या होता है? अयूब खान, द PM of Pak, was removed from his position due to the strong opposition by the students in Pak, and he was मतलब मैं अयूब खान जी की बात कर रहा हूँ। अयूब खान was replaced
by Yahya Khan and his subordinate Tikka Khan. They were no use to Bhutto. क्यों? क्योंकि पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी बनी 1967 में। किसने बनाई? जेड भुट्टो ने। यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। जो वॉर है वहां की स्टोरी अब कैसे स्टार्ट हुई वो समझना, 65 की वॉर कैसे हुई और उसके रीजन, 65 के वॉर के पीछे के जो रीजंस थे वो 71 को वॉर को लीड करने के लिए वो क्या थे। यहाँ पे 1967 में भुट्टो, जेड भुट्टो ने एक अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई और ही वाज वेरी मच श्योर इनफ कि दैट ही विल विन अप इलेक्शंस, बट वेरी not very much aware कि that emotional leader, like emotional leaders in East Pakistan, that National Awami Party will lead in elections. He was an impression that he will become a prime minister. But National Awami Party will lead in elections, and when the people they know that they are leading in elections, what they did, National Awami Party के लिए क्या हुआ कि वो लीड कर रहे थे, इलेक्शंस हुए, he was very sure, Mr. Bhutto was very sure कि that he will win an election, but National Awami Party जो है वो लीड कर गई। National Awami Party जैसे ही लीड करी, तुरंत आर्मी ने एक ब्रूटल क्रैकडाउन कर दिया इन ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, मार्च 1971 शेख मुजबुर रहमान फर्स्ट पीएम बने। कब तक? 15 अगस्त 1975 में। ही वॉज वायलेशन के चक्कर में इनको जेल डाल जाना पड़ा। अंडर वायलेशन ही वॉज बिहाइंड बार्स, राइट। ब्रूटल क्रैकडाउन जिसमें आर्मी ने क्या किया कि अपने मन मुताबिक लोगों को मारा, रेप्स किए, लूट करी। सो देयर वाज, और 20 मिलियन लोग, 20 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग कहां चले? इंडिया की तरफ मूव कर गए। कहां कहां? मेघालय गए, नॉर्थ ईस्ट में काफी लोग गए, बंगाल की तरफ काफी लोग आए, इंडिया में काफी सारे, इन बंगाल को पार करके भी काफी सारे लोग एमपी, छत्तीसगढ़, इस वाले बेल्ट के अंदर, बिहार वाली बेल्ट के अंदर काफी सारे लोगों को आप बांग्लादेशीज को, जो पुराने रेफ्यूजीज हैं, देखने को देखे जा सकते हैं। नाउ दे आर इंडियंस। तो ये एक लोगों को मार पीट के जब इन्होंने अपनी सत्ता आजमाई ईस्ट पाकिस्तान में, जब लोगों को मार पीट के इन्होंने जब सत्ता आजमाई, तो इनको इसका रिजल्ट मिला 15 इंटरनेशनल लॉ से इनको पकड़ा गया। ज्यादा लोगों को मार दिया था ना, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट, लॉ के ट्रिब्यूनल में इनको अंडर वायलेशन ही वाज पुट बिहाइंड बार्स। 20 मिलियन लोग इंडिया के अंदर मूव हुए। अब एक थ्रेट तो ये थी लोगों को फूड की और शेल्टर की, लेकिन वहीं पे ऑपोज करने के लिए जो गुरिल्ला वॉरफेयर हो रही थी, वेपन्स प्रोवाइड होने लगे, और जो इनको बचा रहा था उसको कहते हैं मुक्ति बाहिनी। जो इनको खाना दे रही थी, मुक्ति बाहिनी खाना दे रही थी, फूड दे रही थी, शेल्टर दे रही थी, एवरीथिंग दे वर प्रॉमिसिंगली सपोर्टिंग refugees.
ठीक है। इसी के चलते 1971 में दे डिक्लेयर्ड अ वॉर, जिसमें 93,000 प्रिजनर्स एक साल तक प्रेजेंट रहे इंडियन जेल्स में। अंडर इंडियन जेल्स छोड़ दिया एग्रीमेंट के तहत, और यहीं से बांग्लादेश का डेवलपमेंट हो गया, राइट। अब आते थर्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दिस वाज द स्टार्टिंग इन 1971। दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। थर्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाक, राइट। इसके ऊपर 1972 में शिमला समिट हुई। ये समिट में किसने पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेटेड बाय डीपी धर, who was the home minister of Indira Gandhi, डिप्लोमैट। इंदिरा गांधी डिप्लोमैट्स में से डीबी धर, जिनको की सीवियर अटैक हुआ, अटैक ऑन द सेम डेट ऑफ एग्रीमेंट। ये कोइंसिडेंट है। सीवियर अटैक ऑन द सेम डेट ऑफ एग्रीमेंट, जो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं पैदा हुए, डिफरेंसेस विद पाक, राइट। Bhutto joined this Shimla summit along with his daughter Benazir Bhutto. ओके। अब 3-4 पॉइंट्स थर्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाक कैसे कैसे। 72 का शिमला समिट हुआ, जिसमें डीबी धर जी ने, होम मिनिस्टर जो थे इंदिरा गांधी डिप्लोमेट के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नहीं गॉट अ सेम सीवियर अटैक। तो वो कुछ जो रूल्स, जिसके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए थी, वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, और ये वाटर शेड मार्क्स रह गए। समिट जो है, शिमला समिट जो है, शिमला समिट जो है वाटर मार्क्स छोड़ के जाके गई, ठीक है। इसके तहत मुजीबुर रहमान जिसे कहते थे, मुजीब शेख जो बांग्लादेश में थे, मुजीब शेख वॉज assassinated along with his family, leaving one daughter, Hasina Sheikh. When he died on 15 August 1975. He was away, she was away, so she was survived. When Mujib Sheikh died, his general Ziaur Rahman, इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस जो हैं अच्छे रहेंगे, मेरे को मेंटेन करना,
पर he was also assassinated, इनको मार दिया गया। इनकी वाइफ बेगम 1991 में ये पावर में आई। सिंपैथी वोट। हिज वाइफ बेगम खालिदा जिया 1991 में पावर में आई, सिंपैथी वोट लेके खालिदा जिया। ये एक हिस्ट्री है मारा मारी की, जो मारते चले आ रहे हैं, किसी को किसने मारा, फिर असैसिनेशन हुआ, उसकी वाइफ आई, फिर द एक्चुअल पिक्चर कहां से स्टार्ट हुई? 1980 जनरल जिया उल हक, ये इन्होंने काफी सारे रिलेशन सऊदी अरेबिया, यूएस, चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे किए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये मिस्टर भुट्टो की तरीके से ये पाकिस्तानी सोल्जर थे, ना कि कहीं कैम्ब्रिज या बाहर पढ़ के आए थे। ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मैन। और इन्होंने भुट्टो जी को जेल पहुंचा दिया। ठीक है, एंड ही बिकम अ लीडर। जब ये इनके काफी सारे रिलेशंस, इन्होंने काफी सारे जब रिलेशंस बनाए सऊदी अरेबिया, लीबिया, ईरान, इनके साथ, इनसे फंड्स भी रेस किए। पर जब फंड्स रेस किए तो वो सब कहां जाने लगे? मौलवीज को, रिलीजियस उसमें। जिससे क्या हुआ कि जो जनता थी वो परेशान हो गई, परेशान हुई। नाइनटीन 1988 में बेनजीर भुट्टो, अच्छा इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए भी काम किया, जिसमें इनका साइंटिस्ट है डॉक्टर AQ खान, जो कि एक तरीके से क्या थे, स्मगलर हो गए थे, जिन्होंने बहुत जगह पे अपना न्यूक्लियर फॉर्मूला बेचा था। न्यूक्लियर फॉर्मूला 1988 में बेनजीर भुट्टो टुक एज अ PM। पर ये इनके साथ एक प्रॉब्लम थी, ये बैगेज लेके चली। बैगेज खुद का हस्बैंड था, जिसको मिस्टर 10% भी कहते थे। मिस्टर 10%। ये बड़ी फैमिली के थे, पर आदत से मजबूर, जरदारी, राइट। हर हस्बैंड्स नेम वाज आसिफ अली जरदारी, जो एक बैगेज की तरीके से मिस्टर 10% भी कहा जाता था। यहीं पे क्या हुआ कि 1992 में बेनजीर भुट्टो ने, नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो को रिप्लेस किया, पर वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। 1993 में अगेन शी केम बैक। राइट। इसके बाद सेकेंड, कट्स ऑफ 1000 थ्रोट्स, नाम सुना है? ओके, मिड 80s का कहानी है, मिड 80s एंड 90s की कहानी है। ऐसा हुआ, यहां पे इस्लामिक फ्रेंड्स एंड यूएस से फंड्स और वेपन्स मिले, तब इन्होंने कट ऑफ 1000 थ्रोट्स माना गया, जिससे कि जिहादीज भेजे गए इन कश्मीर, राइट।
देखो भाई बहुत टिपिकल काम है। 4 लाख से ऊपर कश्मीरी पंडित्स को वहां से मूव करना पड़ा, मूव फ्रॉम कश्मीर। नाउ दिस जेंटलमैन प्रवेश मुशर्रफ आए। सी वेरी, ये 1999 में ये एक खुद भी मुजाहिर थे। ये सेंट स्टीफेंस के पढ़े हुए थे। इनकी बड़ी लोगों ने यहाँ पे जब आए इंडिया के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम 1999 के अंदर। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में उनसे पार्टी बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, एनडीए के थ्रू। तब इन्होंने ये कारगिल के लिए वॉर भी स्टार्ट कर दी। ये हमारे रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ दोस्तों। कौन सी पार्टी किसकी है, कौन आया, किसने लड़ाई की, ये ऐसे परवेश मुशर्रफ और लाइक कि नवाज शरीफ और परवेश मुशर्रफ इस तरह के लोग थे कि जब यूएस से कहीं से आ रहे थे ये परवेश मुशर्रफ, तो इनको नवाज शरीफ ने इनको मना कर दिया कि ये अपना प्लेन यहाँ नहीं उतारेंगे पाकिस्तान में। और देन व्हेन ही लैंडेड डाउन, तब इसकी आर्मी ने, बिकॉज ही वाज अ जनरल दैट टाइम, तो इसने क्या किया कि इसकी फौज ने अपोज किया और परवेश मुशर्रफ ने इसको नवाज शरीफ को डिपोज करके तब पीएम बना 99 के अंदर। ठीक है, बड़ी समिट हुई, कारगिल के अंदर वॉर हुई, वो इन्हीं के तरीके से, इन्हीं के वजह से लड़ी गई। यहां तक कि ये भी है कि जनरल जिया उल हक इस टाइप के लोग थे कि व्हेन ही डाइड इन अ क्रैश, ही डाइड अलोंग विद सम यूएस डिप्लोमेट। कुछ भी क्वेश्चंस कुछ भी आते हैं, यू गो थ्रू द टेस्ट सीरीज, इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग रिमेन, सो यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ वेयर एज आई हैव described lot of things about the international relations with Pakistan. It's same like with US, same like with European countries, European Union, same like with China, Sri Lanka, Afghanistan, Bangladesh, even in Indonesia and Vietnam. बहुत सारे हैं जिसमें से पाकिस्तान के ऊपर करीबन 125 क्वेश्चंस का एक टेस्ट सीरीज है 110 क्वेश्चंस की। तो माय रिक्वेस्ट इज टू यू यार, प्लीज स्टूडेंट्स, इट्स जस्ट ₹1, ठीक है, इट्स जस्ट ₹1। 110 questions, that type of questions, when you go through it, I'm sure until and unless you will not see these notes, you will not go through the PDF, you will not be able to do it, right? So it's very important, nothing will be left in this. Thank you for the session guys, bye, have a nice day.